Good morning, students. Today we will learn more about Microsoft PowerPoint 2007. That is lesson number 7. Open page number 67. Children, we have already learned many features of MS PowerPoint in the previous class, that is in the first standard. Let us have a quick review and learn more features of PowerPoint. Microsoft PowerPoint is a component of MS Office suite which is used to create simple and appealing presentations. PowerPoint gives you the ability to make effective presentation by adding text, diagrams, scanned image, clip arts, sounds, colors, designs and animated special effects. पावर पॉइंट किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं. उसमें बहुत सारा हम ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, स्कैन इमेज डाल सकते हैं, क्लिप आर्ट डाल सकते हैं, साउंड, कलर्स वो सब दे सकते हैं, एनिमेटेड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं. When we create a presentation, it is made up of a collection of slides arranged in a sequential manner to entertain, motivate, convey, persuade, or give information. The slides contain the information you want to communicate with your audience. प्रेजेंटेशन में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होते हैं, उसमें अरेंज करते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में, 1 by 1 करके हम वो प्ले करके दिखाते हैं. हम ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं उसमें वो हम स्लाइड्स में एंट्री करके रखते हैं. वो पिक्चर्स भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, एनिमेटेड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. A slide is like a page in a presentation that displays a brief information you want to communicate with your audience. These slides are grouped together in a sequence to form a slideshow. A slideshow is an electronic presentation displayed on a computer screen one by one. Slideshow means हमने जो स्लाइड बनाया है उसको 1 by 1 कंप्यूटर स्क्रीन में प्ले करने के लिए स्लाइड शो बोलते हैं. PowerPoint is a powerful communication tool used to present our views and ideas effectively through visual aids. PowerPoint में से कम्युनिकेशन टूल है एक्चुअली, वो हमारे व्यूज़ एंड आइडियाज़ इफेक्टिवली विजुअल इफेक्ट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस वर्ल्ड एंड आल्सो in schools to teach different topics. This helps in providing a better understanding of the subject. We can easily import data from Microsoft Word, Microsoft Excel, etc. into a PowerPoint presentation. हमको PowerPoint presentation में डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी ले सकते हैं, एक्सेल से भी ले सकते हैं, दूसरे कोई भी डॉक्यूमेंट से भी ले सकते हैं. वी कैन जनरेट हैंड आउट मटेरियल एंड स्पीकर्स नोट्स आफ्टर क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के बाद हमको स्पीकर्स नोट वगैरह भी जनरेट कर सकता है. Presentation can be projected on a big screen by attaching on the computer to a multimedia projector. प्रेजेंटेशन बनाने के बाद हमको बड़ा स्क्रीन में भी मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज़ करके दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन. नाउ स्टार्टिंग MS PowerPoint, इसका कैसे ओपन करते हैं उसका बताया है. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम सेकंड स्टेप, देन चूज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस थर्ड स्टेप, उसमें से क्लिक ऑन द Microsoft Office PowerPoint fourth step. On starting PowerPoint, a blank presentation named Presentation 1 with a title slide appears. PowerPoint स्टार्ट करने के टाइम उसका क्या नाम से ओपन होगा? Presentation 1 से blank presentation आता है. Now creating a new presentation. To create a new presentation using our imagination, follow these steps. Click on Office button and select New option from the drop down menu.
न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफिस बटन में सेलेक्ट न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स आएगा। चूज ब्लैंक प्रेजेंटेशन एंड क्लिक ऑन क्रिएट। द स्लाइड डिस्प्लेस द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड placeholders. A blank presentation uses the default settings for text and color. Click on the layout button in the slides group or on the home tab and select the desired layout from the displayed list. Now you can add text in placeholders of the slide. इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन के लिए ऑफिस बटन में जाने का, न्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करके उसमें से प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स दिखाई देंगे, उसमें से आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में रेक्टेंगुलर बॉक्स वगैरह आएंगे ऐसा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूसेस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स ऑफ टेक्स्ट एंड कलर। नॉर्मल टेक्स्ट एंड कलर डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करते हैं उसमें। क्लिक ऑन लेआउट बटन ऑफ इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सेलेक्ट द डिसाइड लेआउट फ्रॉम द डिस्प्ले। उसमें से लेआउट साइड में दिखाए, उसमें से कौन सा लेआउट चाहिए आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, उसमें से जो भी चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऐड टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर्स ऑफ द स्लाइड। उसमें अभी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। Built-in templates. MS PowerPoint 2007 does not contain the auto content wizard for creating a presentation. Instead, if you are new to PowerPoint, you can create your presentation quickly and easily by using built-in templates. PowerPoint 2007 templates includes a sample slideshow that contains various themes and layouts, including most of those that existed in the auto content wizard. Templates give you an initial foundation to build a presentation. We can modify text and design of a template, add pictures, sound, company's logo, or can also delete existing contents from the templates. MS PowerPoint में ऑटो कंटेंट विजार्ड नहीं है, उसके जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बिल्ट इन टेम्पलेट्स यूज़ कर सकता है। उसमें एक बिल्ट इन टेम्पलेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सैम्पल स्लाइड शो भी होते हैं, उसमें वेरियस थीम्स एंड लेआउट्स, उसके बारे में हम बताते हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ दोज एक्सिस्टेड इन द ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑटो कंटेंट विजार्ड जैसा ही है उसमें भी। टेम्पलेट्स गिव यू एन इनिशियल फाउंडेशन टू बिल्ड ए प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट से हम आपको इनिशियल फाउंडेशन मिलेगा, कैसे प्रेजेंटेशन बनाना है उसके बारे में। यू कैन मॉडिफाई द टेक्स्ट एंड डिज़ाइन ऑफ ए टेम्पलेट। आपको टेक्स्ट एंड डिज़ाइन टेम्पलेट का चेंज भी कर सकता है, पिक्चर्स ऐड कर सकता है, साउंड दे सकता है, कंपनीज लोगो दे सकते हैं, वो सब इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ट इन टेम्पलेट्स। Open MS PowerPoint by selecting Start All Programs, Microsoft Office PowerPoint 2007. Click Office button, New option. New presentation dialog box will appear. Select the Install Templates option under Templates selection. इसमें न्यू प्रेजेंटेशन आने के बाद क्या करना है, इंस्टॉल टेम्पलेट ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें से टेम्पलेट्स सेक्शन से इंस्टॉल टेम्पलेट्स ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द सैम्पल टेम्पलेट्स, एग्जाम्पल इंट्रोड्यूसिंग पावरपॉइंट 2007 फ्रॉम द इंस्टॉल टेम्पलेट सेक्शन। उसमें एग्जाम्पल्स में से एक ऐसा वाला क्रिएट निकाल सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग पावरपॉइंट 2007 फॉर एग्जाम्पल के लिए। क्लिक ऑन द क्रिएट बटन ऑन द सेलेक्टेड टेम्पलेट्स विल ओपन एज न्यू प्रेजेंटेशन। इसमें ऐसा न्यू प्रेजेंटेशन की तरफ से ओपन हो जाएंगे। This new presentation contains 18 slides illustrating different slide layout, backgrounds, themes, etc. उसमें ये presentation में क्या है, built in template में 18 slides है, उसका 18 slides में भी उसका 1 by 1 करके आएंगे। Now you can add text in the placeholders of each slide and view the slideshow. Modifying built-in templates. Let us learn how to edit templates and design it according to our requirements. हमको अभी कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे टेम्पलेट्स का। Inserting smart art. Smart art is a graphic tool used to create a visual representation of
information which help in displaying effective communication of our ideas. It contains a variety of graphical layout and diagrams to display data in a presentation. इधर साइड में दिया है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स, आप एक बार देख लीजिए. सेलेक्ट ए स्लाइड फ्रॉम स्लाइड पेन where the smart art has to be inserted. Click on Smart Art button in the Illustration group on Insert tab. Insert tab में Illustration group में आता है Smart Art, उसमें क्लिक करने का. Choose a Smart Art graphic dialog box appears. सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट, आपको कौन सा स्मार्ट आर्ट चाहिए वो सेलेक्ट करने का. एग्जाम्पल, गो टू पिरामिड टैब एंड सेलेक्ट बेसिक पिरामिड. क्लिक ऑन ओके. इसमें पिरामिड टैब में जाके बेसिक पिरामिड में क्लिक करके ओके बटन. द स्मार्ट आर्ट विल बी इंसर्टेड ऑन द स्लाइड. नाउ एडिट द टेक्स्ट इनसाइड दिस डायग्राम अकॉर्डिंग टू योर नीड. इसमें पिक्चर दिया है, इसमें पिरामिड आया है, उसमें आपको एडिट भी कर सकता है टेक्स्ट आपको. Using themes. Themes are the sets of pre-designed formats that includes text, layouts, backgrounds and color schemes, etc. which can be applied to any presentation. कोई भी presentation को हमको pre-designed format दे सकता है, टेक्स्ट का, लेआउट का, बैकग्राउंड का, कलर का, सब. Click on Design tab. Under Themes group, scroll the mouse over the available themes and select the desired themes. Observe the changes on the slide. इसमें themes group होता है, उसमें scroll करेगा तो available themes दिखाएंगे, उसमें से एक एक theme select करके देखना है changes क्या होता है slides में. For more template designs, click on More drop-down arrow at the bottom right of Themes group. A drop-down menu will appear. In this drop-down menu, you will also find options like Browse for themes and Save current themes on your computer or from the internet. इसमें अलग अलग ऑप्शन आते हैं, Browse for themes, फिर Save current theme on your computer or from the internet से भी यूज़ कर सकते हैं. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड थीम टाइप, आपको कौन सा थीम टाइप चाहिए वो सेलेक्ट करना है. यू विल गेट द सेलेक्टेड थीम टाइप ऑन द स्क्रीन. वो सेलेक्ट किया तो उसमें से आपको थीम टाइप दिखाएंगे. इधर पिक्चर में दिया है थीम्स अलग अलग, उसमें से आपको कौन सा थीम चाहिए वो सेलेक्ट कर सकता है. यू कैन आल्सो सेलेक्ट द थीम टाइप फ्रॉम द इंस्टॉल थीम्स ऑप्शन इन न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स. आपको न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स से इंस्टॉल थीम सेलेक्ट कर सकते हैं. व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन. You can view your presentation in a different format such as normal view, slide sorted view and slideshow. By default, we always work in normal view. The view buttons are available in the presentation views groups on view tab. View tab में presentation views में आपको मिलता है view option. Normal view. It is the main editing view which is used to write and design the presentation. In normal view, you can add text, graphics, sounds, animation and other effects as well. You can also have a large view of an individual slide. Notes pane at the bottom and outline of the slide text outline tab and slide displayed as thumbnails slide tab all at the same time. नॉर्मल व्यू ऐसा हम ओपन करने के टाइम इधर पिक्चर दिया है, नीचे ऐसा ही आता है नॉर्मल. इधर पिक्चर दिया है, ये नॉर्मल व्यू का पिक्चर है. हम ओपन करने के टाइम एक पिक्चर एक स्लाइड पूरा दिखाई देंगे, साइड में छोटे छोटे थंबनेल फॉर्म में बाकी सब स्लाइड्स भी दिखाएंगे. टू ओपन दिस व्यू, ओपन व्यू टैब एंड क्लिक नॉर्मल ऑप्शन और क्लिक ऑन नॉर्मल व्यू आइकन ऑन द स्टेटस बार. स्टेटस बार में नॉर्मल व्यू में क्लिक करने का तो ये दिखाई देंगे. स्लाइड सॉर्टर व्यू, अभी दूसरा स्लाइड्स दिखाने का मेथड है स्लाइड सॉर्टर व्यू. इट डिस्प्लेस ए मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन. एक ही प्रेजेंटेशन में मिनिएचर पिक्चर दिखाएंगे. इन स्लाइड सॉर्टर व्यू यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स, कॉपी और डिलीट द स्लाइड्स. स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं स्लाइड्स को.
add transition, animation effects and set the timing for slideshow. इसमें ट्रांसिशन भी डाल सकते हैं, एनिमेशन इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं, फिर टाइमिंग भी हम सेट कर सकते हैं। स्लाइड शो कितना टाइम तक स्लाइड दिखाना है वो टाइमिंग सेट कर सकते हैं। Select the View tab and click on the Slide Sorter button. You will see all the slides of your presentation and a thick border around the selected slide. Slide Show View. It shows all the slides of a presentation starting either from the first slide or the current slide one after another. One slide occupies the complete screen. स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, 1 by 1 स्लाइड आता है, वो स्टार्टिंग से भी आ सकता है, नहीं तो करंट स्लाइड से भी हम शो कर सकते हैं। उसमें पूरा स्क्रीन में एक ही स्लाइड दिखाएंगे, उसके बाद दूसरा स्लाइड आएंगे 1 by 1. In full screen view, you can see how your graphics, timings, movies, animated elements, and transition effects will look in the actual show. Click on the slideshow button on the status bar. इसके लिए क्या करना है, स्टेटस बार में से स्लाइड शो बटन में क्लिक करना है. व्यू स्लाइड शो और क्लिक ऑन स्लाइड शो टैब एंड सेलेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑप्शन. बिगिनिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें तो स्टार्टिंग से आएगा. You can also use F5 key to view the slideshow. Slideshow देखने के लिए F5 की भी यूज़ कर सकता है. To move to the next slide, click on the mouse button. Next slide में जाने के लिए माउस बटन आपको क्लिक करना है दोबारा, और use Enter और स्पेस बार की. अदरवाइज एंटर की या स्पेस बार की प्रेस करना है. To move between slides, use page up और page down की और up और डाउन एरो की. स्लाइड्स के बीच में एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जाने के लिए पेज अप, पेज डाउन या अप एंड डाउन की एरो की यूज़ कर सकते हैं. टू क्विट द स्लाइड शो व्यू, प्रेस एस्केप की ऑन द कीबोर्ड. स्लाइड शो व्यू से बाहर आने के लिए हमको एस्केप की प्रेस करना है कीबोर्ड में से. Notes on the page. Notes page option is available on the View tab. It displays the notes page over the selected slide where you can create additional notes for the current slide. हमको notes पेज में से क्या कर सकते हैं, एडिशनल नोट्स भी करंट स्लाइड में ऐड कर सकते हैं. दीज नोट्स आर हेल्पफुल वाइल शोइंग द प्रेजेंटेशन के टाइम में वो नोट्स भी दिखाई देंगे आपको. नाउ पॉइंट्स एट ए ग्लांस. A presentation is a collection of slides arranged in a sequential manner to entertain, motivate, convey or persuade or give information. Presentation क्या होता है, slides sequential order में arrange किया होता है. A blank presentation uses the default setting for text and color. Normally blank presentation में default setting होता है text and color का. Templates are the set of pre-designed formats that include text, layout, color schemes, pictures, sound, etc. that help in creating a beautiful presentation. The normal view, slide sorter view, notes page and slideshow view are available on the View tab. MS PowerPoint saves a file with an extension .pptx. Hope you all of you understand this lesson. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.